So hello everyone. Now in today's class we are going to discuss about the phylum Annelida. ठीक है, उसके पहले के phylum हम already discuss कर चुके हैं. Today we are going to start discussing from the phylum Annelida. ठीक है. Now these are also known as the ringed or the segmented worms. ठीक है, these are also known as the ringed or the segmented worms. ठीक है, because of their appearance. ठीक है. Now the grade of organization is of the organ system level. ठीक है, the grade of organization is of the organ system level. ठीक है. The symmetry is bilateral, means they can be divided into two equal halves with the single plane passing through the central axis. ठीक है. Now the germinal layers, these have three germinal layers, the ectoderm, the endoderm and the mesoderm. ठीक है, तीनों ही क्या है इसमें प्रेजेंट है. अच्छा, यहाँ पे लिखा है तो यहीं से बता देते हैं, इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, दैट इज नोन एज द आर्केंटेरॉन. ठीक है, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द एनेलिड्स, मतलब फाइलम एनेलिड्स इज नोन एज द आर्केंटेरॉन. ठीक है. These have a coelom, these have a true coelom, that's why these are also known as the coelomates. ठीक है, these lie in the category of the coelomates. ठीक है, because they have the presence of a true coelom. Okay, this is the coelom. Now habit and habitat, these could be terrestrial or fresh water और मराइन. ठीक है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं, और एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर और मराइन दोनों ही हो सकते हैं. ठीक है, दीज कुड बी फ्री लिविंग और कुड बी पैरासिटिक. ठीक है. नाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अगेन कंप्लीट, मीन्स दे हैव अ माउथ एंड अ एनस. मतलब इनकी क्या है, डिफरेंट ओपनिंग्स है, किसकी, माउथ और एनस की. ठीक है. द रेस्पिरेशन इज क्यूटेनियस, जो इनकी क्यूटिकल है, जो मैं कहीं ना कहीं कहूँ सरफेस है. ठीक है, ये हमारी जो लेयर्स होती है, ओके, हमारी बॉडी की जो लेयर्स होती है, जो हमने अभी लास्ट फाइलम में भी देखी थी कि क्यूटिकल है, ओके, एंड देन क्या होता है, द एपिडर्मिस. ठीक है, तो इनका जो क्यूटिकल होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसके थ्रू उनका रेस्पिरेशन होता है. मीन्स कहीं ना कहीं आई कैन से द बॉडी सरफेस से क्या हो रहा है, इनका रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस. ठीक है, यू कैन सी दिस एक्सचेंज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन. ठीक है, ये किससे हो रहा है, हमारे इनके क्यूटिकल से हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बॉडी सरफेस से. ठीक है. Some have branchial respiration, that means they have presence of the gill. ठीक है, some have presence of the gills in them. Okay. Now the circulatory system is closed type. We all know what is open circulation and what is closed circulation, right? Open circulation is when the pump is being pumped out by the heart into a open space. ठीक है, into a open space and the organs are directly bathed by the blood. ठीक है, they do not have some blood vessels or something, right? And the closed type is what we have. ठीक है, the blood travels in our body in the vessels only, है ना. तो this is basically the open and the closed type, and they have the closed type of the circulation. ठीक है, these have a closed type of the circulation. ठीक है, you can see it here. ठीक है, यहाँ पे ब्रेन भी है, माउथ है, ब्रेन है, हार्ट है, ठीक है, स्लोम है, नर्व कॉर्ड है, ओके, एक्सेसरी हार्ट्स है. मेन हार्ट इज दिस, दे हैव अ एक्सेसरी हार्ट एज वेल. ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज प्रेजेंट एंड द सेगमेंटेड वॉल्स आर प्रेजेंट. ठीक है. Now the reproduction, they reproduce by the sexual means. ठीक है, and the earthworms and the leeches are the monoecious. Dioecious are when the organisms are having the separate sexes, either the organism is male or the organism is female. ठीक है, but monoecious means they have both the sex organs in the same individuals. ठीक है, they have both the sex organs in the same
इंडिविजुअल, ठीक है। द नेरीज इज डाइशियस, द अर्थवर्म एंड द लीचेस आर मोनोइशियस, ठीक है। मोनोइशियस का यहाँ पे मीनिंग भी लिख ही देते हैं, मीन्स दे हैव मेल एंड फीमेल organs in same individual, ठीक है। तो अर्थवर्म और लीचेस क्या होता है, मोनोइशियस होता है, मतलब उनमें मेल और फीमेल दोनों ही स्ट्रक्चर्स क्या हैं, प्रेजेंट है, ठीक है। द नेरीज इज डाइशियस, द नेरीज इज डाइशियस मीन्स या तो ऑर्गेनिज्म मेल है और या तो वो क्या है, फीमेल है, मतलब दोनों स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट नहीं है, या तो वो मेल हो सकता है या तो वो फीमेल हो सकता है, ठीक है। एंड द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ओके, मतलब इनके पास लार्वा स्टेज नहीं होती, ओके। अगर आप मतलब जब आप आगे पढ़ेंगे 12th में, ठीक है, तो यू विल लर्न अबाउट द this accessory ducts, the accessory organs in details, but of the humans, right? तो उसमें आपको ये चीज़ें तब फेमिलियर लगती कि द प्रोस्टेट ग्लैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ह्यूमंस, ठीक है, मेल्स, ओके, द स्पर्मेटिक डक्ट, द एक्सेसरी ग्लैंड्स, द वासा डिफरेंशिया, दिस ऑल आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन मेल्स एज वेल, ठीक है। द ओवरी, द सेमिनल वेसिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द मेल्स, ओके। The testis sac with testes, these all are present inside the male as well, human males as well, ठीक है। Now the unique feature is segmentation like rings, ठीक है, segmentation like the rings, ठीक है। Now the locomotory organs are the setae, the locomotory organs are the setae, ठीक है। ये जो छोटे छोटे जो आपको पैर दिख रहे हैं, ठीक है, these are known as the setae, ठीक है। and in the nares they are the parapodia, ठीक है, in the nares these are the parapodia, ठीक है। ये क्या है, पैरापोडिया, नेरीज में क्या है, पैरापोडिया होते हैं, और जो अर्थवर्म होते हैं उसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड द सेटे, ठीक है। द यूनिक फीचर इज दे एक्सक्रीट बाय द नेफ्रीडिया, ठीक है। लास्ट में हमने जब एस्केल मेंथिस पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि द एक्सक्रीशन अकर्स बाय द फ्लेम सेल्स, ओके। यहाँ पे आके जो एक्सक्रीशन है वो किससे हो रहा है, नेफ्रीडिया से, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, नेफ्रीडिया से, ठीक है। तो हर जैसे जैसे हम ऑर्गन्स में आगे बढ़ते जाएंगे विल गेट टू नो, ठीक है, कि जो सारे ही ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट तरह से अपना सर्कुलेशन चलाते हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिफरेंट तरह से अपना सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन सब चलाते हैं, ठीक है। तो एक्सक्रीशन हेयर अकर्स बाय द नेफ्रीडिया, ठीक है। नाउ द यूनिक फीचर्स आर दैट दे हैव अ पेयर गैंग्लिया, ठीक है, कनेक्टेड बाय अ lateral nerves to a double ventral nerve cord. We have all discussed this in the excretory system के गैंग्लियास क्या होते हैं, ठीक है। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड यहाँ पे एक नई चीज़ है डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पे इनके पास क्या है, ब्रेन भी आ गया है, ठीक है, यहाँ पे इनके पास ब्रेन भी आ गया है, ठीक है। मतलब इनके पास अब नर्वस सिस्टम क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, बिकॉज द गैंग्लियाज आर बेसिकली व्हाट, द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। जो गैंग्लियाज है वो क्या है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है ना कहीं ना कहीं। तो दीज हैव पेयर्ड गैंग्लियाज, ठीक है, दीज हैव पेयर्ड गैंग्लियाज, ओके। और these are connected by the lateral nerves to a double ventral nerve cord, ठीक है। ये कहाँ पे कन्वर्ट है, ये सेंट्रल सेरेब्रल गैंग्लियन है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जाके किससे कनेक्ट हो रहा है, नर्व कॉर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे जाके क्या हो रही है, हमारा नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। Now the examples are the earthworms, ठीक है, the leech
एंड द नेरेस। लीच को डेफिनेटली आपने देखा होगा और कहीं किसी चीज को देखा हो नहीं हो, ठीक है, जिसको हम हिरुडिनेरिया बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम हिरुडिनेरिया बोलते हैं इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीच को हम क्या बोलते हैं, हिरुडिनेरिया, ठीक है। नेरेस इज नोन एज सैंडवर्म, इट इज फाइन, मतलब इवन इफ यू डोंट रिमेंबर इट, ओके। And this is known as the ferritima. The earthworm is known as the ferritima, but leech is known as hirudineria. Remember this, okay? Okay. The next is the phylum Arthropoda, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स का मतलब ही यही होता है जॉइंट लेग्ड एनिमल्स, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स का मतलब ही यही होता है कि जॉइंट लेग्ड एनिमल्स, ठीक है। इसमें बेसिकली कौन से हैं, इंसेक्ट्स इंक्लूडेड है, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में कौन इंक्लूडेड होता है, जनरली इंसेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। नाउ द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करें तो दे हैव द organ system grade of the organization, they have the organ system grade of the organization, ठीक है। they have a bilateral symmetry, the germinal layers are 3, the ectoderm, the endoderm and the mesoderm। अब तो आगे 3 ही germ layers है, right। The habit and the habitat, they are cosmopolitan। cosmopolitan का मतलब होता है कि जो सभी जगह मिल जाए, ठीक है। ये वर्ड हमने फंगस में भी, फंजाई में भी पढ़ा था, जब हमने किंगडम फंजाई पढ़ा था, तो वो भी क्या होती है, जनरली कॉस्मोपॉलिटन होती है, लेकिन प्रिफर्ड एनवायरनमेंट उनका क्या होता है, वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस, ठीक है। तो ये भी क्या है, कॉस्मोपॉलिटन है। इंसेक्ट्स वी ऑल नो, हमको कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का इंसेक्ट्स कहीं ना, मतलब हर जगह मिल ही जाता है, ठीक है। तो these are cosmopolitan, ठीक है। Now the digestive system is complete, means they have 2 openings, the mouth and the anus। दोनों ही क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, माउथ प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है, एनस प्रेजेंट है, ठीक है। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, रेस्पिरेशन पे आता है, तो दीज हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, दीज कुड बी गिल्स, ठीक है। द बुक गिल्स, ठीक है, ये बुक गिल्स है, क्रुस्टेशियंस में होते हैं। ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट दीज हैव, क्रुस्टेशियंस हैव द बुक गिल्स, ठीक है, क्योंकि इनका थोड़ा स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द बुक गिल्स, ठीक है। कुछ में क्या होता है, ट्रेकिया होता है, एंड सम हैव द बुक लंग्स, ठीक है, सम हैव द बुक लंग्स। दिस इज द बुक लंग्स, ठीक है, द ट्रेकिया, द बुक गिल्स एंड द नॉर्मल गिल्स, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली द स्ट्रक्चर्स ऑफ द रेस्पिरेशन, ठीक है। यू गाइस कैन even Google it for better pictures, right। Now the circulatory system, this is of open type, मतलब the blood is pumped by a heart into the body cavities, मतलब open space में ये क्या कर रहा है, heart blood को पंप कर रहा है, कोई वेसल्स प्रेजेंट नहीं है उसके लिए, ठीक है, कि डायरेक्ट वेसल से वेसल्स में काम चल रहा है, ठीक है। ये क्या है, ओपन टाइप का, एंड इट इज पंप्ड बाय हार्ट इनटू द बॉडी कैविटीज, ठीक है। Now the reproduction, occurs mostly by the sexual means only, or actually it occurs by the sexual means, ठीक है। They are mostly dioecious, मतलब मेल्स और फीमेल्स क्या है, सेपरेट है, ओके। यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन occurs, ठीक है, एंड मोस्टली ओविपेरस। ओविपेरस और विविपेरस क्या होता है, ओविपेरस मीन्स द एग लेइंग एनिमल्स, ठीक है, जो भी एग ले करते हैं बॉडी के बाहर, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस। विविपेरस किसको कहते हैं, द ऑर्गेनिजम्स which give birth to the
बेबी डायरेक्टली, जैसे हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, तो वी आर द विविपेरस ऑर्गेनिजम्स, है ना, क्योंकि हम एग्स थोड़ी बॉडी के बाहर देते हैं, राइट, हम बॉडी के बाहर तो एग्स नहीं देते ना, तो जो ऑर्गेनिज्म एग्स ले करते हैं, एग अंडे देते हैं बॉडी के बाहर, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स, और इनमें मोस्टली सब क्या होते हैं, ओविपेरस, ठीक है, मींस दे ले एग्स, ओके। नाउ द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब ये डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, लार्वा स्टेज प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आप बटरफ्लाई में देख लो, लार्वा स्टेज प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ कुछ में प्रेजेंट नहीं भी होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही टाइप का डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। द यूनिक फीचर्स आर द जॉइंटेड अपेंडेजेस, जो इनके पैर हैं, ठीक है, अपेंडेजेस पे हम पैरों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दीज आर दे हैव अ जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है, मतलब पैर प्रेजेंट है सॉरी, मतलब इनके पास क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ द बॉडी हैज 3 रीजन्स, ठीक है, इन जो इंसेक्ट्स है, जनरली अपन इंसेक्ट्स को दिमाग में रख के ही चीजें सोचते हैं ताकि इट वुड बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो द बॉडी हैज 3 रीजन्स, ओके, द हेड, द thorax एंड द एब्डोमेन, द हेड, द thorax एंड द एब्डोमेन, ठीक है, ये दिस इज द हेड, this is the thorax and this is the abdomen, okay. Now the body is covered by the chitinous cuticle, ठीक है, the body is covered by the chitinous cuticle, ठीक है। क्यूटिकल अपन को समझ आ गया कि बॉडी के बाहर की जो थिक लेयर है, जो सुपरफिशियल लेयर है, दैट इज द क्यूटिकल, ठीक है, और ये क्या है, कवर्ड है किससे, एक काइटिनस क्यूटिकल। नाउ इट इज एक्टिंग एज अ एक्सोस्केलेटन, मतलब जो बॉडी के हमारे अंदर जो स्केलेटन है वो बॉडी के अंदर कहीं मतलब प्रेजेंट है, ठीक है, उसके ऊपर सारे ऑर्गन्स और सारा स्ट्रक्चर्स जो है वो टिका हुआ है, बट दीज हैव अ एक्सोस्केलेटन, मतलब जो बॉडी के बाहर बॉडी के अंदर नहीं प्रेजेंट है, आप समझ रहे हो, ये लेयर्स में प्रेजेंट है, यहाँ सरफेस पे कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, नॉट अबव द सरफेस के वी कैन सी इट विजुअली, ठीक है, बट इट इज इन द लेयर, जो हमारी सुपरफिशियल लेयर्स है वो बॉडी के मतलब अंदर वाली तरफ प्रेजेंट है, लेकिन उस लेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो इट इज द एक्सोस्केलेटन, ठीक है। एंडो और एक्सोस्केलेटन होते हैं, वो भी एंडो मतलब जो हमारा स्केलेटन है, ठीक है, और एक्सोस्केलेटन दैट इज प्रेजेंट इन दिस, ठीक है। द एक्सक्रीशन अकर्स बाय द मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, द एक्सक्रीशन अकर्स बाय द मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसमें भी मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स पढ़ा था, और इसमें तो जो एक्सक्रीशन है वो इन्हीं ऑर्गन्स के थ्रू क्या हो रहा है, इट इज टेकिंग प्लेस थ्रू दीज और दीज स्ट्रक्चर्स ओनली, ठीक है। द सेंसरी ऑर्गन्स आर द एंटेनास, वी ऑल नो दीज इंसेक्ट्स हैव द एंटेनास, राइट, ठीक है। द कंपाउंड एंड द सिंपल आईज एंड द स्टैटोसिस, ठीक है, द स्टैटोसिस दैट इज मीन्स द बैलेंसिंग ऑर्गन्स, ठीक है। नाउ जो नॉर्मल आईज होती है, ठीक है, वो भी हो सकती है जो नॉर्मल जैसी दिखती है, ठीक है, एंड दीज आर अ टाइप ऑफ द कंपाउंड आईज, ठीक है, जो मतलब अपनी नॉर्मल जगह से कहीं अलग प्रेजेंट है, जैसे जनरली इट इज प्रेजेंट ओवर दिस, ठीक है, द कंपाउंड आईज आर जनरली डिफरेंट फ्रॉम द सिंपल वंस, ठीक है। The examples of the phylum Arthropoda is the spider, the scorpion, the crab, the prawn, etc. ठीक है, और insects we all know है ना, Arthropoda के मतलब examples को ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, okay? The housefly, we all have seen this, right? Okay. The next is the phylum Mollusca, ठीक है, this is the second largest phylum. Okay, now these are the soft bodied animals, ठीक है, these are the soft bodied animals, okay. Now the grade of organization is of organ system level, ठीक है, symmetry is bilateral and they have 3 germinal layers, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। Now the coelom, they have a true coelom, they have presence of a true coelom, ठीक है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, अच्छी खासी मीजोडर्म से लाइंड है,
ठीक है। हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो दे हैव एक्वेटिक हैबिटेट एंड फ्यू आर टेरेस्ट्रियल ऑल्सो, ठीक है। मोस्टली क्या है, एक्वेटिक है, लेकिन सम आर टेरेस्ट्रियल ऑल्सो, ठीक है। दे हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दैट मीन्स दे हैव टू ओपनिंग्स, दैट इज द माउथ एंड द एनस, okay. The respiration occurs through the gills in the aquatic forms, ठीक है, and in the terrestrial form it occurs with the help of the pulmonary sac. Again I would say that we have read about the the respiration system also, ठीक है। तो हमारे अंदर जो lungs होते हैं उसमें क्या होता है, छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, दैट इज द एल्वियोलाई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक पल्मोनरी सैक है, उसी के थ्रू क्या हो रही है, सारा ये जो रेस्पिरेशन का काम है वो इस पल्मोनरी सैक के थ्रू हो रहा है, ठीक है। नाउ द सर्कुलेशन इज ऑफ ओपन टाइप अगेन, ठीक है। बॉडी कैविटीज में क्या हो रहा है, डायरेक्ट ब्लड पंप हो रहा है, ठीक है। द रिप्रोडक्शन इज अगेन द सेक्सुअल टाइप, ठीक है। दीज आर बेसिकली द डाइशियस ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या है, सेक्सेस दोनों सेपरेट ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, ठीक है। ओविपेरस होते हैं, मतलब एग लेइंग है ये भी, ठीक है। और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह से हो सकता है, मतलब लार्वा स्टेज प्रेजेंट भी हो सकती है और ऐसा हो के प्रेजेंट नहीं भी हो, ठीक है। यूनिक फीचर्स की बात करें तो द बॉडी हैज हेड, ठीक है, द विसरल मास और द विसरल हम, यू कैन सी दिस इज द विसरल मास और द विसरल हम्प, ठीक है, एंड अ मस्कुलर फुट एंड द मस्कुलर फुट, ठीक है। अगर अपन इसको स्ट्रक्चर को एग्जाम में इमेजिन करने की कोशिश करें तो वी कैन इमेजिन दैट दिस इज द हेड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्नेल्स वगैरह हमने कहीं ना कहीं देखे हैं, तो आप उसके एक बार बॉडी को मतलब इमेजिन करके देखोगे, द मिडल वन जिसमें जो इतना बड़ा सा दिखता है दैट इज द विसरल मास और द विसरल हम्प, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, शेल प्रेजेंट है, और वो मूव कैसे करेगा, फुट से, ठीक है। द हेड हैज सेंसरी टेंटेकल्स, ठीक है, द हेड हैज द सेंसरी टेंटेकल्स, जो कि सेंस कर सकता है सारी चीजों को, ठीक है। एंड दे हैव अ कैल्सियस शेल, ठीक है। इनके पास क्या है, एक हार्ड शेल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। यू कैन सी दिस के ऐसे हमने काफी सारी मूवीज वगैरह में भी देखा है कि इनके अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉफ्ट बॉडी होती है, ठीक है, और उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये शेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द यूनिक फीचर्स आर दे हैव फेदर लाइक गिल्स फॉर द रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, दोनों का काम कौन निपटा रहा है, ये फेदर लाइक गिल्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रेस्पिरेशन भी होता है और एक्सक्रीशन भी होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन क्या है, दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक है। Here the mental and the radula are seen, ठीक है। Here the mental and the radula are seen. Now what is mental and what is radula? The mental is the membrane which covers the visceral mass, ठीक है। The mental is the membrane which covers the visceral mass, ठीक है। The space between the hump and the mental is called the mental cavity, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी, ठीक है। नाउ द रेड्यूला, इट इज फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, ठीक है, प्रेजेंट इन द माउथ ऑफ द मोलस्क, ठीक है, एंड इट इज यूज्ड फॉर फीडिंग, ओके। मेंटल क्या है, लेयर है जो हम्प को क्या कर रही है, लाइन कर रही है, और रेड्यूला क्या है, माउथ में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि इनकी फीडिंग के काम आता है, ठीक है। नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ द फाइलम मोलस्का, ठीक है, दैट इज द पिल्ला, दैट इज द एप्पल स्नेल, Pintada, that is the pearl oyster, Sepia, that is the cuttlefish, Lolico, that is the squid. ये थोड़ी कॉमन एग्जाम्पल्स है तो ये आप याद कर लेना। डेविल फिश, दैट इज द ऑक्टोपस, ऑक्टोपस आप याद रखो। बाकी और आई डोंट थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट, बट एटलीस्ट ये तो इजी नेम्स है, ये अपन याद रख सकते हैं, ठीक है। ऑक्टोपस, लॉलिको तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए, ठीक है, ताकि हम कैरेक्टरिस्टिक्स को भी रिकॉल कर सके एक बार के लिए, ठीक है। सो
दिस इज ऑल फॉर द टुडेज क्लास। जो बाकी के नेक्स्ट 3 फाइलम्स जो बचे हैं, ठीक है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू।